Good evening, students. Welcome back. We were doing the chapter thermodynamics, and it's quite chilly weather out here. See, I'm wearing cap and all. बहुत ठंडा है यार, इतना ठंडा है कि मत पूछो. Okay, so we have discussed the basics of thermodynamics, like what is system, what is surrounding, then what is the isothermal process, what is the adiabatic process, what is the equation satisfied for isothermal process, equation satisfied for adiabatic process, what is the work done of isothermal process, what is work done adiabatic process. Okay, now in this video we'll go to the next topic, that is called first law of thermodynamics. Okay, we'll go for different laws now. First law, second law, zeroth law, ये सब चीज पढ़ेंगे हम. Now first go to first law of thermodynamics. Now ये जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, you can write down in the notebook those things, but you have to study from preparation. I will be sending a PDF where all the book pages are marked. From that you will mark in your book and you will study from there. Okay, लेकिन जो भी मैं लिख रहा हूँ तुम लिख सकते हो अपने लैंग्वेज के लिए, अगर बुक का लैंग्वेज तुमको समझ में नहीं आता हो तो. Now, what is first law of thermodynamics? The first law of thermodynamics say that if you have a particular system, it is basically conservation of energy. ये कुछ नहीं है, conservation of energy है. Okay, इसको अगर नाम दे दिया गया, जैसे बर्नौलीज थ्योरम भी क्या था, conservation of energy था. This is also a type of conservation of energy. It say if I supply some heat to the system, for example, system एक gas है, इससे मैंने कुछ heat दिया. Let dq is the heat supplied. Okay, or another way around I can say heat absorbed by system. Absorbed by system. This heat absorbed by system, okay, is used in two ways. Okay, first to increase the internal energy of the system. इससे कारण क्या होगा? Increase in internal energy हो जाएगा. Okay, and dw work done by the system, मतलब expand होगा. By the system, खुद से expand होगा. By the system बोला है ना, expand होगा. So whatever the energy I am giving, that is used in two ways. Some part of the energy is used to increase the internal energy of the system, and some part of the energy is used to do some work done by the system. This is called first law of thermodynamics. खत्म. ठीक है, इतना ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसको तुम एज अ थ्योरी मगअप मत करो. यूज ए कॉमन सेंस. दिस इज जस्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो भी मैं हीट दूंगा, जो भी मैं एनर्जी दूंगा, हीट इज नथिंग बट एनर्जी. जो भी मैं एनर्जी दूंगा वो कहां जाएगा? वो दो तरीके से यूज होगा. एक उसके सिस्टम का इंटर एनर्जी को बढ़ाने के लिए, दूसरा वो सिस्टम कुछ वर्क डन करेगा, एक्सपेंशन वर्क डन. क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ व्हेन वी यूज दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन एनी न्यूमेरिकल और एनी कॉन्सेप्ट्स, in any conceptual problem, we have to use a particular sign convention. तुम्हें ये sign convention समझना है. It's a very important. Okay, don't get confused, class. This never asks in exam, but this is very important with respect to your numericals, conceptual problem. The last topic of this chapter, Carnot engine, which is very important. Okay, now क्या क्या होता है? सुनो ध्यान से. ये जो dq है, यह टाइम फाइनल माइनस इनिशियल है. ये जो du है, ये भी फाइनल माइनस इनिशियल है. फाइनल इंटर एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. ये क्या है? वर्क डन. ओके, ना ये कोई फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है. दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम. ओके, इसमें कोई फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है. इसमें क्या होगा? हीट कंटेंट इनिशियल, फाइनल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. फाइनल इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम. वर्क डन, दिस इज नथिंग बट W. ये क्या है? वर्क डन बाय सिस्टम. ठीक है, अब इसमें जो साइन कन्वेंशन लगता है वो क्या है, ध्यान से समझते हैं. ओके, इफ आई से हीट एब्सॉर्ब हुआ, ट्राई टू यूज अ कॉमन सेंस. अगर हीट एब्सॉर्ब हुआ, कैसे फाइनल बड़ा होगा इनिशियल से, मतलब dq पॉजिटिव होगा. अगर हीट रिलीज हुआ तो कैसे फाइनल इनिशियल से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा. क्लियर? हीट रिलीज हो तो हीट कंटेंट कम हो गया सिस्टम का, तो फाइनल हीट एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब ये सबट्रैक्शन करोगे तो नेगेटिव आएगा. ओके, बुक में ये सब नहीं बोला गया है. These things are not written in the book. So that's why I told you whatever is written out here, that also you write it down, but you have to study from the book also. Okay, next, internal energy. Okay, मैं बोलूं internal energy increases. Internal energy increases. Now, ये कब होता है? In the last video, at the end of the video, I told you that we are dealing in bookish language, theoretical language, all the ideal gas. Ideal gas में internal energy only depends on temperature. So if I say internal energy increases, इसका मतलब कब? When temperature increases.
So if internal energy increases, we can say final internal energy is greater than initial internal energy. So what is du? Plus. If I say internal energy decreases, internal energy decreases. अब ये कब होगा? When temperature decreases. Okay, this implies final is less than initial, then du will be negative. Do you understand? Next, तो इसका साइन कन्वेंशन मेरे को समझ में आ गया. dq का साइन कन्वेंशन क्या है? एब्सॉर्ब मतलब पॉजिटिव, रिलीज मतलब नेगेटिव. इंटर एनर्जी इंक्रीज हो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटर एनर्जी पॉजिटिव आएगा, चेंज इन इंटर एनर्जी पॉजिटिव आएगा. ओके, अगर टेम्परेचर घट गया तो चेंज इन इंटर एनर्जी नेगेटिव आएगा, क्योंकि तब इंटर एनर्जी घट जाएगा. ओके, नाउ इफ आई से वर्क डन बाय सिस्टम, दिस इंप्लाइज dw इज पॉजिटिव. बाय में पॉजिटिव होता है. वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब तब dw नेगेटिव होगा. क्लियर? अब मेरी बात कान फाड़ के समझना. When you study chemistry, in chemistry also you have a chapter named as thermodynamics. Okay, this sign convention is similar in physics and chemistry. This sign convention is similar in physics and chemistry, but this sign convention is opposite in physics and chemistry. So don't think that बाबा रे फिजिक्स में अलग थर्मोडायनामिक्स और केमिस्ट्री में अलग थर्मोडायनामिक्स, ऐसा थोड़ी होता है. थर्मोडायनामिक्स एक ही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग क्यों होगा? तो क्यों होगा? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं PdV, दैट इज P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. ये फिजिक्स का है. फिजिक्स में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है. केमिस्ट्री में हम क्या यूज करते हैं? केमिस्ट्री में हम वर्क डन का फॉर्मूला माइनस PdV यूज करते हैं. माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल. ये केमिस्ट्री में यूज होता है माइनस के साथ. इसलिए क्या होता है? साइन कन्वेंशन पकड़ जाता है. देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम. अगर बाय द सिस्टम हुआ मतलब एक्सपेंशन, तब दिस कैन आई से दिस इज एक्सपेंशन. इफ आई से वर्क डन ऑन द सिस्टम, कैन आई से कंप्रेशन. ये सब तो समझ में आ गया होगा. ओके, एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम बड़ा होता है इनिशियल वॉल्यूम से, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगा. लेकिन यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा. इसलिए बाय द सिस्टम में केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम में केमिस्ट्री में पॉजिटिव होता है. फिजिक्स में ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेस हुआ तो फाइनल वॉल्यूम लेस देन, फिर वैल्यू नेगेटिव आएगा. So I hope you understand why there is a difference in the sign convention in physics and chemistry. So don't get confused, class. Everything is same. Only the formula they are using two different ways. That's why the sign convention is different. Okay. Now this is all about the sign convention. After that, if you check the PDF, some important points you need to remember from first law of thermodynamics. Okay. That I am not writing. I am just explaining one by one. ओके, बुक में जहां पे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा हुआ है वहां पे देखो सम एसेंशियल पॉइंट्स, द फॉलोइंग पॉइंट्स वर्थ नोटिंग रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऐसे करके लिखा हुआ है. ओके, जस्ट आफ्टर द साइन कन्वेंशन दोस पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट पॉइंट, दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ यूनिवर्सल लॉ. दैट मींस इट इज एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस, एनीवेयर. हर जगह ये लॉ लगा सकते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हर जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और कंजर्वेशन एनर्जी यूनिवर्सल लॉ है. इंडिया में लगाओ, ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, अर्थ में लगाओ, मून में लगाओ, दिन में लगाओ, रात में लगाओ, कभी भी लगाओ, कहीं भी लगाओ. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कहीं भी लगा सकते हैं. दूसरा, अगेन इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूनिवर्सल लॉ. दैट मींस दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी अप्लाइड टू एनी स्टेट. इट कैन अप्लाई टू सॉलिड, इट कैन अप्लाई टू लिक्विड, इट कैन अप्लाई टू गैस. कहीं भी लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल लॉ. दिस होल लॉ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर? थर्ड पार्ट, व्हेन वी अप्लाई दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन. ऑफ कोर्स कहीं भी तुम यूज करोगे तो तुम्हें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा. बिना साइन कन्वेंशन के तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं लगा सकते. ठीक है ना? फोर्थ, नाउ टू अंडरस्टैंड द फोर्थ लॉ you need to understand. Again, you check out the PDF. In the initial pages of the PDF, there is something called as zeroth law of thermodynamics. अब इसके बारे में समझो अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ठीक है ना? zeroth law of thermodynamics समझने के लिए पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा what is thermal equilibrium. पहले ये समझ लेते हैं thermal equilibrium क्या है. When I can say two bodies are in thermal equilibrium when the temperature is equal. खत्म. When temperatures are equal, then we can say they are thermal equilibrium. Thermodynamic equilibrium नहीं. Thermodynamic equilibrium मतलब क्या? When all the parameters are same, pressure, volume, temperature, everything is same.
But I'm talking about only thermal equilibrium. Thermal equilibrium means what? When the temperature of the two bodies are equal. Then we can say they are in thermal equilibrium. You understand? Okay. अब zeroth law क्या बोलता है? Zeroth law बोलता है there are two bodies A, B, and there is one more body C. C is in thermal equilibrium with A separately. मतलब एक दूसरे सिस्टम में C और A को रखा, वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम था. फिर और एक सिस्टम में C और B को रखा, वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम था. दैट मींस सेपरेटली. एक ही सिस्टम में तीनों बॉडी नहीं है, अलग अलग सिस्टम में है. डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन C is in thermal equilibrium with A in a particular system, so can I say temperature of C is equal to temperature of A? And when the C is in thermal equilibrium with B in another system, can I say temperature of C equals to temperature of B? Then from these two, can I say temperature of A equals to temperature of B? बस यही है जीरोथ लॉ. अब मैं स्टेटमेंट बताता हूं. A third body C is in thermal equilibrium with two bodies A and B separately. Then A and B are also in thermal equilibrium. The temperatures are equal. This is zeroth law of thermodynamics. ये हुआ zeroth law समझना. अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं. इसको zeroth law क्यों बोला गया है? ये एग्जाम में पूछता है. And this law based on what? This law based on the fundamental concept of temperature. Temperature is the fundamental quantity, we all know. Out of 7 fundamental quantities, temperature is one of the fundamental quantity. इतना मुझे पता है. So this law based on the fundamental quantity temperature. This law actually defines temperature. What is temperature? Temperature is something which shows whether two bodies are in thermal equilibrium or not. Clear? Temperature is something which shows how the heat will flow. High temperature to low temperature. ये सब टेम्परेचर बताता है. टेम्परेचर क्या है? एक फंडामेंटल, दिस वर्ड यू राइट, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. और जीरोथ लॉ फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ डील करता है. ठीक है? क्लियर? इतना मेरे को समझ में आ गया. अब इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा है? थोड़ा नामकरण के बारे में बात करते हैं. एक्चुअल में इन हिस्ट्री पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया. पहले नहीं आया. तो अब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आने के बाद अगर मैं कोई दूसरा लॉ बनाऊं तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हायरार्की वी से इट एज थर्ड लॉ. तो मैं इसको जीरोथ लॉ क्यों डाला? तो मेरे पास फर्स्ट लॉ मिल गया, मेरे पास सेकंड लॉ मिल गया, उसके बाद ये लाया, तो इसको मुझे थर्ड लॉ नाम देना चाहिए. तो इसको जीरोथ लॉ नाम क्यों दिया? क्योंकि दिस क्वेश्चन आस्क्स एग्जाम, व्हाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर नेम्ड सो? बिकॉज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद द फंडामेंटल क्वांटिटी temperature. Okay, since it is dealing with the fundamental quantity, so it should come in front. तो फर्स्ट एंड सेकंड तो पहले डिस्कवर हो गया, तो फर्स्ट के आगे क्या होता है? जीरो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज राइट डाउन इन योर लैंग्वेज. यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ओके, सो मुझे समझ में आ गया. लाइक अब मैं फोर्थ पॉइंट कर रहे बात करूंगा. ठीक है? वी अंडरस्टैंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद द फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर. सिमिलरली what fundamental quantity first law of thermodynamics deal with? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद इंटरनल एनर्जी. ओके, ये जो हीट किया, ये जो वर्क डन हुआ, ये सब चीज इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करना है. In the previous video, at the end, I told you heat and work done are the two ways to change the internal energy of the system. Internal energy is actually the state variable. Clear? तो heat और work done क्या है? They are equivalents with respect to internal energy. हीट दूंगा तब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क डन होगा सिस्टम में तब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. तो मेन आइडिया इज इंटरनल एनर्जी. सो इफ समवन से यू ओके द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ व्हाट, तो यू विल से इट डील्स विथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. लाइक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विथ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. सो इट्स zeroth law of thermodynamics, like zeroth law of thermodynamics is defined the fundamental quantity temperature. वैसे ही first law of thermodynamics define the fundamental quantity, we can say internal energy. Clear? Now the last one. Last one again we have studied, just now I have told you. Heat and work done. First law of thermodynamics is the equivalence of heat and work done. It signifies that heat and work done are equivalent to each other. Okay? Another way around we can say, अगर इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो या तो मुझे हीट देना पड़ेगा, अगर इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है या तो मुझे हीट देना पड़ेगा या तो वर्क डन करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज टोल्ड बाय
first law of thermodynamics. So these are the things which you need to understand. I'm repeating it once more. सबसे पहला, since it is based on the universal law conservation of energy, it is applicable to all the process every time. इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, रात को हो या दिन को हो, ठीक है, अर्थ में हो या मून में हो. Okay, since it is conservation of energy, that means it is applicable to all the states of the system, solid, liquid, and gas. When we apply first law of thermodynamics, we need to go for sign convention. We need to check the sign convention. Fourth point, the first law of thermodynamics deals with integrity of the system, like zeroth law of thermodynamics deals with temperature of the system. Clear? And the last point, that is the fifth point. Fifth point shows again the same thing which we studied earlier, that heat and work done are equivalent to each other. They are two different ways to have a change in the internal energy of the system. Clear, class? Okay, so this is all about the basics of what is first law of thermodynamics. Now what we will do, we will apply the concept of first law of thermodynamics few practical thermodynamic processes, and we will see what conclusion we can find out, and that we need to study from here. Whatever I will write in the book, that you don't need to study from the book. Okay, but in the book it is named as application of first law of thermodynamics. This topic we gonna do now. Okay class, now before going to this topic, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें नोटबुक पे लिखा है ना साइन कन्वेंशन. उस साइन कन्वेंशन में तुम्हें जो इंटरनल एनर्जी में लिखा हुआ है, क्या लिखा आपने? If temperature increases, internal energy increases. Del U, change in internal energy is positive. If temperature decreases, internal energy decreases. Change in internal energy is negative. वहां पे एक चीज और लिखो, if no change in state of the system, no change in state of system, कहां लिखना है, समझ में आया ना क्लास? कहां लिखना है? जहां पे इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं. If there is no change in the state of the system, that is in case of cyclic process. Okay, that means जब initial state and final state equal होगा क्लास, okay, then the change in internal energy is zero. क्यों? Because internal energy is a state variable. इस डिपेंड करता है स्टेट वेरिएबल में. स्टेट अगर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो इन केस ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, always the initial state and the final state are equal. In those cases, the change in internal energy is also zero. Okay, change in internal energy is zero. Internal energy zero नहीं होगा, change in internal energy zero. Because final internal energy and initial internal energy are equal. Pause the video, note it down. Okay. Now, the next thing, application of first law of thermodynamics. According to book, the topic is this: application of first law of thermodynamics. But I have changed the topic in some other way. Conclusions on thermodynamic processes using first law of thermodynamics. We will see. We will take few thermodynamic processes like cyclic process, isothermal process, isocodic process. ऐसे करके कुछ प्रोसेस लेंगे और मैं देखूंगा when we apply the first law of thermodynamics, we come to certain conclusions. Okay, वो conclusions हमें समझना है और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा. सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में. अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ लगाओ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? dq equals to du plus dw. Now in isothermal process, temperature is constant plus. Yes, we know temperature is constant. मतलब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, तो कैन आई से change in internal energy is also zero. Change in internal energy zero होगा. क्यों होगा क्लास? क्योंकि since internal energy depends on only temperature, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये मुझे पता है, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. So that means change in internal energy zero होगा. So from there what we understand, therefore dq equals to dw. ये हुआ कंक्लूजन. अब सुनो मेरी बात. Plus plus, what we can conclude that in a thermodynamic, in a isothermal process, the total heat absorbed by system, क्योंकि प्लस है मतलब absorbed by system, or we can say given to system, एक ही बात है, is used to do work done by system. Why by? क्योंकि ये प्लस है. ठीक है,
गिवन टू सिस्टम Q प्लस है। तो टोटल हीट जो भी हीट दिया मैंने वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वो कंक्लूजन। तो तुम्हें कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है, प्रूव दैट इन आइसोथर्मल प्रोसेस द टोटल हीट गिवन टू सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन बाय द सिस्टम। दैट मींस यू नीड टू डू दिस थिंग। तो ये चीज एज अ प्रूफ पूछेगा एग्जाम में। डू यू अंडरस्टैंड? राइट ऑन दैट थिंग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? Okay, prove that in isomer process the total heat given to the system is used to do work done by the system. Okay, और ऐसा पूछ सकता है in which type of process the total heat given to the in which type of thermodynamic process the total heat is converted into work done. So if total heat is converted into work done मतलब du zero होगा। तो du zero कब होता है भाई? तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्लियर? ओके, इसी चीज को बुक में ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं, सिमिलरली minus dq equals to minus dw if I multiply minus both the sides. तो अब क्या होगा? Now the things will change. In a isothermal process, what will happen? Heat released by system minus 1 is due to work done minus a by the system. In this process, in a isothermal process, the total heat released by system is due to work done minus a on the system. Okay, with no change in internal energy. क्लियर क्लास? तो इन चीजों को अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। सो डोंट जस्ट मग अप लाइक अ पैरट, देन यू वोंट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्लियर क्लास? ओके, अकॉर्डिंग टू दिस द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज देयर अंडर दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब चलो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स गो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। नहीं, ये होता है ना, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। दिस इंप्लाइज चेंज इन हीट कंटेंट इज जीरो। क्लियर क्लास? चेंज इन हीट कंटेंट जीरो है। नाउ अब मैं फर्स्ट लॉ लगाता हूं। चलो इसमें लेट्स गो फॉर द फर्स्ट लॉ नाउ। Okay, so now if I apply first law, by first law, dq equals to du plus dw, right? Plus, तो ये तो जीरो हो गया, du plus dw, तो what is du minus dw? ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that in an adiabatic process, work done on the system leads to increase in internal energy. In an adiabatic process, क्या लिखेंगे? Work done on the system. Why on the system? Because it is negative. Leads to increase in internal energy. Why increase class? Because internal energy positive है. Increase in internal energy. अब सिमिलरली इसको मैं दूसरे तरीके से भी पढ़ सकता हूं। माइनस डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, वी कैन स्टडी लाइक दिस ऑल्सो। अगेन यहां पे क्या हो जाएगा? इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। नाउ व्हाई बाय द सिस्टम? बाय क्यों है? बिकॉज इट इज प्लस, लीड्स टू डिक्रीज इन इट्स internal energy. Why decrease class? Because negative है। तो अगेन एग्जाम में पूछ सकता है, in which type of process? Okay, the work done on the system leads to increase in its internal energy. Work done by the system leads to decrease in its internal energy only. Okay, there is no case of heat exchange. We have to say adiabatic process. और हमें बोलेगा prove that in adiabatic process work done by the system, that is plus dW, is equals to increase in its internal energy or decrease in its internal energy. Clear class?
Okay. Okay. Next, if you go for cyclic process, now what will happen in a cyclic process? और नहीं थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले आइसोकोरिक में चले जाता है बेटा. आइसोकोरिक प्रोसेस. अगर तुम्हें पता है व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. तो व्हाट इज dW? PdV. सो वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, दैट इज वर्क डन इज जीरो. ये समझ में आ गया. सो dQ इक्वल्स टू du प्लस जीरो. उतना कुछ नहीं लिख रहा भाई, फर्स्ट लॉ एनर्जी लॉ वो तुम लोग खुद से लिख सकते हो. सजाना तुम खुद से कर सकते हो ना बेटा. बाय फर्स्ट लॉ dq इक्वल्स टू du प्लस dw, देन dq को du प्लस जीरो लिख सकते हो. फ्रॉम द व्हाट आई गॉट dq इक्वल्स टू du. तो यहां पे क्या लिखोगे? अब आई एम नॉट राइटिंग इट, लिसन वेरी केयरफुली, यू विल राइट इन योर ओन लैंग्वेज. इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, heat absorbed by system plus है ना, heat absorbed by the system is totally converted into or leads to increase in its internal energy plus or totally converted into internal energy. You can say like this, totally converted into internal energy. Do you understand? छोड़ो, तुम पे डिपेंड नहीं करता है. In an isochoric process, the total heat absorbed by system. Okay, why absorb? क्योंकि प्लस है बेटा. is we can say leads to increase the total heat, leads to increase in its internal energy, leads to increase in its internal energy. increase क्यों? क्योंकि अगेन प्लस है. ओके, इसी को मैं दूसरे लैंग्वेज में लिख सकता हूं क्या? इन आइसोकोरिक प्रोसेस द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी. और इन आइसोकोरिक प्रोसेस द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी. क्योंकि वर्क डन तो कुछ हो नहीं रहा भैया. ओके, इसी को मैं सिमिलरली ऐसा भी कर सकता हूं, माइनस dq इक्वल्स टू माइनस dw. The total heat released to system leads to decrease in its internal energy. उतना तो लिख दो भाई खुद से, ठीक है ना. सिमिलरली बोल के माइनस dq इक्वल्स टू माइनस d, दो तरफ माइनस लगा दिया. माइनस dq मींस मतलब heat released by the system leads to decrease in its internal energy. That you will write on your own. Okay. Now the fourth one is cyclic process. Now cyclic process में क्या होगा बेटा? Now what is the cyclic process? So इन साइक्लिक प्रोसेस, मैं थोड़ी देर पहले बोला था एक नोट में ऐड करना. इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम. सिस्टम का स्टेट सेम रहता है, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो. क्लियर? समवॉट आइसोथर्मल. देयरफॉर आई कैन से dq इक्वल्स टू dw. बस ये दो चीज फिर से लिख दो. In a cyclic process, the total heat given to the system is used to do work done by system. ठीक है, खुद से लिख देना ये चीज पूरा. Understand? Similarly, minus dq equals to minus dw. Again, in a cyclic process, the total heat released by the system is due to work done on the system. Okay, class? Now, the next application is very important. With the help of first law of thermodynamics, we can derive Mayer's formula. Now what is Mayer's formula? ये हर साल आता है बेटा एग्जाम में, और ये एक टॉपिक पढ़ लिए आप दो सब्जेक्ट में लिख सकते हो. केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है. दैट इज रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv. वी नो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R. पढ़ा है मैंने. ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज में मैंने पीजे भेजा था, वहां पे लिखा हुआ था. Heat capacity at constant molar heat capacity at constant pressure is always more than molar heat capacity at constant volume. क्यों? क्योंकि constant pressure में जो तुम वर्क डन जो हीट दोगे वो दो तरीके से यूज होता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन करने के लिए. लेकिन constant वॉल्यूम में जो हीट दोगे वो सिर्फ एक ही तरीके से यूज होता है, क्योंकि वॉल्यूम constant है, वर्क डन नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये वाला हीट ज्यादा है. So heat capacity at constant pressure is more than heat capacity at constant volume. Whatever I have told you just now, that is there in the PDF of thermal properties of matter, the PDF which I sent you.
Okay, so we will derive this using first law of thermodynamics, and it's quite important and it's easy also, and it's very very important. Why? Because this question comes in both the subjects physics and chemistry. Definitely तुम्हें दोनों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर. Okay class, the next topic is Lenz's formula, relation between specific heat capacity at constant pressure and constant volume. So what I'm doing, I'm considering 1 gram mole of ideal gas, 1 gram mole of ideal gas in a cylinder with perfectly फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ठीक है ना. अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना. मैं इस सिस्टम के साथ दो चीज करूंगा. क्या दो चीज करूंगा? केस वन. ओके, लेट dq heat is supplied to system at कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने dq हीट सप्लाई किया एंड dt इज द राइज इन टेम्परेचर. हीट सप्लाई किया, सिस्टम में हीट को ऑब्जॉर्व किया तो कुछ राइज इन टेम्परेचर होगा ना. लेट dq इज द राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा बेटा? अब मैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊंगा एंड वी विल सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ increase in internal energy. So let I'm saying du is the increase in internal energy. ठीक है. तो by first law of thermodynamics we can say dq equals to du plus dw. राइट. अब मैं इन एक एक चीज को कैलकुलेट करूंगा. यहां से dq कितना होगा? mc/dt फॉर्मूला होता है ना, mc/dt याद है ना. q इक्वल्स टू mc/dt. यहां पे m क्या है? 1 ग्राम मोल. m इज 1. इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाउ आई हैव टू यूज मोलर हीट कैपेसिटी बिकॉज यहां पे हमने 1 ग्राम मोल लिया है. तो कौन सा वाला? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज वी आर डूइंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वी आर गिविंग द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हियर. सो 1 mc del T राइज इन टेम्परेचर इज dt. ये आ गया dq. वर्क डन क्या होता है? p dv. ये जीरो होगा. क्यों? सिंस चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो बिकॉज वी आर डूइंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब इन चीजों को यहां डाल दो. देयरफॉर cv dt इक्वल्स टू du प्लस जीरो. du तो du निकालना है मेरे को, जीरो ही है. तो फ्रॉम द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज cv dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब मैं क्या करूंगा? द सेम सिस्टम को मैं हीट दूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, बट राइज इन टेम्परेचर सेम रहेगा. दिस इज द ओवरऑल बेसिक्स ऑफ द होल डेरिवेशन. राइज इन टेम्परेचर दोनों केस में सेम होना चाहिए. सो इन केस 2 व्हाट इज हैपनिंग क्लास? केस 2 लेट dq dash is the heat supplied to system at constant pressure. Now we are doing it as at constant pressure. Okay, so let dt same rise in temperature, same rise in temperature. This is a very important basics. दोनों में हीट अलग अलग देंगे, दोनों में इंटरनल एनर्जी चेंज अलग अलग आएगा, दोनों में वर्क डन अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का राइज इन टेम्परेचर सेम होगा. ओके, dt is the rise in temperature and I'm saying du dash is the increase in internal energy. Internal energy. तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला डालू ये dq equals to du plus dw, तो पहले हम निकालते हैं what is dq dash. Again m specific molar heat capacity. Instead of specific capacity now I have to use molar specific capacity. Why? Because मैंने 1 ग्राम मोल लिया है. mc del T rise in temperature. अब जो वर्क डन होगा वो होगा कुछ p dv. Right? P is the pressure. Okay, तो मैं मान लेता हूं consider 1 gram mole of ideal gas and consider in cylinder with perfectly frictionless piston such that PVT are the pressure, ये मैंने डिफाइन नहीं किया था, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस. टेम्परेचर ऑफ गैस.
ठीक है ना, वो मैंने डिफाइन नहीं किया था तो मैं डिफाइन कर दे रहा हूं मैं, पीवी की एज प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फिगर्स। दिस सिचुएशन, उसको मैंने पहले हीट दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देख, यहाँ पे इन चीजों को निकालना है। सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो गया, ड्यू कितना है वो निकालना है, और हीट mc डेल्टा टी लगाना पड़ता है। m इज 1, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, कैपिटल C होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि मैंने 1 ग्राम मोल लिया, सिर्फ मास नहीं लिया, मैंने 1 ग्राम मोल लिया। ओके ओके, वर्क डन 0 क्यों होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम इज 0 बिकॉज़ कांस्टेंट वॉल्यूम है। यही चीज यहां कर रहे हैं। अब कुछ ना कुछ तो वर्क डन आएगा ना बेटा, pdv, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, राइट, बिकॉज मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम तो चेंजेस हो रहे हैं। तो आप अगेन बाय फर्स्ट लॉ, if you apply the formula, let it is dw dash. Okay, it is, what is dw dash? Work done by the system. Here dw dash work done by the system, du dash the increase in energy. Okay, only thing is same in both the cases is rise in temperature. So by first law of thermodynamics, खुद से लिख लेना, we can say dq dash equals to du dash plus dw dash. अब वैल्यू डालो, Cp dt du dash plus P dv, तो यहां से du dash कितना आ रहा है, Cp dt minus P dv. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब मेरे को पता है कि internal energy is only depending on temperature. Since internal energy only depends on temperature, and in both the cases there is same rise in temperature. If there is same rise in temperature, this implies there will be same change in internal energy also. That means दोनों internal energy का change same आएगा. ये समझ में आया क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में rise in temperature same है. Though I am giving different heats, though different work is done, बट इन दोनों का इंटेंसिटी चेंज सेम आएगा, बिकॉज इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और दोनों में राइज इन टेम्परेचर सेम हुआ है, इससे दोनों में इंक्रीज इन इंटेंसिटी भी सेम होगा. इतना समझ में आ गया क्लास. तो यहां से क्या मिला मेरे को, Cv dt इज इक्वल्स टू Cp dt माइनस P dv. तो ये आ जाएगा P dv इक्वल्स टू Cp माइनस Cv dt. ये आया फाइनली. ओके, लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा, मुझे प्रूफ करना है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है. सो वी नीड टू टेक आउट R नाउ. ठीक है, अब यहाँ पे R में कैसे लाओ, तो मुझे P dv को कन्वर्ट करना पड़ेगा R के फॉर्म में. ठीक है, सो कैसे करेंगे, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. यू नो, बाय आइडियल गैस इक्वेशन, बाय आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन से PV इक्वल्स टू RT, nRT पता है मेरे को, PV इक्वल्स टू nRT. सो यहां पे PV इक्वल्स टू RT आ जाएगा, क्यों, बिकॉज n इज 1. ओके, नाउ दिस whatever we are doing here, we are doing for constant pressure. मैं ये इक्वेशन निकाल रहा हूं, बायोमेट्रिक गैस इक्वेशन फॉर केस 2, केस 2 के लिए कर रहा हूं. मतलब यहां मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, या तो वॉल्यूम कर दो या तो टेम्परेचर कर दो, विथ रेस्पेक्ट टू टी. या तो विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट कर दो आप, तब भी चलेगा, या तो विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर दो, तब भी चलेगा. बोथ आर सेम, यू विल गेट द सेम थिंग. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ddt ऑफ PV इक्वल्स टू ddt ऑफ RT. यहाँ पे P कांस्टेंट है, बिकॉज वी डीलिंग विद सेकंड केस, कांस्टेंट प्रेशर P बाहर, क्या बचा, dV बाई dt इज इक्वल्स टू R बाहर, ddt ऑफ ddt 1 हो गया ये. सो यहाँ पे क्या आएगा, P dV इक्वल्स टू R dt. दिस अप्लाइज from 3. If you apply this in the place of P dV, I can write R dt is equals to Cp minus Cv dt. देखो प्रूव हो गया, Cp minus Cv equals to R. This is called Mayer's formula. Okay class, सब कुछ समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं again, the next topic which you need to understand is limitations of first law of thermodynamics. Limitations of first law of
thermodynamics. This you have to solely study from refresher. बट मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं बेटा, मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मैं जो भी लिखा हुआ यहाँ पे अगर तुम्हें समझ में आता है तो. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिमिटेशन है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना. फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो भी मैं हीट दूंगा वो कैसे यूज होगा, बस और कुछ नहीं. इतना ही है फर्स्ट लॉ. इट बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, अब फर्स्ट लिमिटेशन. फर्स्ट लॉ ये समझा नहीं पाता है कि हीट कहां से कहां फ्लो होगा, जो कि मुझे पता है हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. दिस वी अंडरस्टैंड आफ्टर जीरोथ लॉ. ठीक है ना. तो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ फेल टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, जो कि मुझे पहले से पता है. लेकिन फर्स्ट लॉ ये समझा नहीं पाता है कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में क्यों फ्लो करेगा. ये फर्स्ट लॉ नहीं समझा पाता है. क्लियर. नेक्स्ट लिमिटेशन, कब तक फ्लो होगा ये समझाता नहीं, जो कि हमको पता है. हीट क्यों फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो होता है. तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस गायब ना हो जाए, जब तक दो बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो तब तक हीट फ्लो होता है. क्योंकि हीट फ्लो ही होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. एज सून एज द टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट there is heat flow. As soon as the temperature becomes same, that means thermal equilibrium अगर आ गया, heat flow बंद. Okay, so the first limitation is it cannot explain the direction of heat flow. Next, it cannot explain the extent of heat flow. कब तक heat flow होगा. Clear class? मुझे पता है heat flow तब तक होता है जब तक temperature difference होता है. The third limitation, it is somewhat related to the first limitation. फर्स्ट लिमिटेशन बोलता है कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगा नहीं पता. वी कैनॉट आइडेंटिफाई फ्रॉम फर्स्ट लॉ. इन अदर वे अराउंड, दैट इज द थर्ड लिमिटेशन. यूजिंग फर्स्ट लॉ वी कैनॉट अंडरस्टैंड विच इज द सोर्स ऑफ हीट. मतलब हीट निकल कहां से रहा है, सोर्स क्या है. हॉट बॉडी इज अ सोर्स ऑफ हीट और कोल्ड बॉडी इज अ सोर्स ऑफ हीट. फर्स्ट एंड द थर्ड लिमिटेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर. डू यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन क्लास? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, रिपीट इट अगेन रिपीट द वीडियो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, कहां से कहां हीट फ्लो करेगा नहीं समझा पाया, कब तक हीट फ्लो करेगा नहीं समझा पाया, और कहां से हीट निकल रहा है नहीं समझा पाया. ओके, नाउ विल गो टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, देन देयर आर मेनी थिंग्स अदर देन दैट. यू नो, the PDF which I send you, like few parts are marked, like what is cyclic, non-cyclic process, what is reversible and non-reversible, irreversible processes. Those things you will study on your own. ओके, खुद से पढ़ोगे, बहुत चीज मार्क किया हुआ है. हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ अगेन दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन फ्रॉम रिफ्रेशर. देयर यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट मग अप, अंडरस्टैंड टू स्टेटमेंट्स. दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, चलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते हैं. जो हम ऐसा कुछ चीज डिस्कस करते हैं जो कि हमने रियल लाइफ की सिचुएशन में फेस किया. पहला, we all are actually, you guys are young adult now. You guys are in 11-12 classes. You are at least more than 15 years of age. So you have seen a little bit of life. You understand that हर आदमी कोई भी कुछ करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना जरूरत देखता है. इन अदर वे अराउंड वी कैन से एवरीवन इज सेल्फिश. कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको बदले में कुछ चाहिए होता है, नहीं तो वो नहीं करेगा. ओनली 2% इन दिस होल वर्ल्ड हु वाज नॉट selfish. You know what? Mom and dad. Rest, if you talk about teacher, if you talk about any other relative, if you talk about your brothers, siblings, brother and sister, everyone is selfish. Only 2% in this whole world, they are not selfish. That is mom and dad. For every child. Okay. But देखो फिजिक्स पढ़ा रहा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस क्यों भेज रहा हूँ? आपने ट्यूशन ज्वाइन किया, आपने फीस दिया, इसलिए मैंने वीडियो भेजा. मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूं? मैं भी सेल्फिश हूं. फ्री में थोड़ी भेज रहा हूं. तो क्या होगा कि तुमने मुझे कुछ दिया बोल के मैंने कुछ दिया. यही चीज है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इस दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं है
जो कि बिना कुछ खा के कुछ दे, मतलब बिना हीट एब्जॉर्ब करके वो वर्क डन नहीं कर सकता। इफ इट इज डूइंग सम वर्क डन, वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। ये बोलने का तरीका है। अब दूसरा केस, हम थोड़ा, हर दुनिया में हर आदमी आलसी भी है, जितना लेता है उतना करता नहीं है, कुछ कम करता है। जैसे मैं तुमको वीडियो बना के दे रहा हूं, सब कुछ करके दे रहा हूं, लेकिन टाइम पे नहीं दे पाया। इस बार का टेस्ट में ये हुआ, तो टाइम पे दे नहीं पाया, तो क्या हुआ, सब कुछ नुकसान हुआ, समथिंग इज गेटिंग प्रॉब्लम, समथिंग इज रॉन्ग हियर, लिटिल बिट ऑफ लॉस हुआ। इन अदर राउंड वी कैन से कि मैंने अगर कुछ खाया, ठीक है, जैसे मान ले, चलो इसको मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में घुस के बात करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अच्छा रोड बनने वाला है, तो नेता लोग ने पैसा लिया रोड बनाने के लिए। क्या पूरा पैसा लगाता है रोड बनाने के लिए? नहीं, आधा पैसा पॉकेट में होता है। ऐसा ही कुछ मशीन के साथ भी होता है। मशीन ने जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वर्क डन करने के लिए, वो पूरे हीट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है वर्क डन में, कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो जाता है। दैट मींस 100% of the heat absorbed is cannot convert into work done. Do you understand? So this is second law of thermodynamics. This is a one statement of second law of thermodynamics, that is called Kelvin-Planck statement. जो भी मैंने बात किया, that is Kelvin-Planck statement. So someone asks you what is second law of thermodynamics, you will write Kelvin-Planck statement. Next, Clausius statement. तुम्हें ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है. This whole thing you have to study from refresher class. Okay, so I hope you understand what is the Kelvin-Planck statement. This says there is no machine which can do work done without absorbing any heat. What is this? Other way around, we can say there is no machine available which can convert the 100% of heat into work done. नहीं. Okay, अब जाते हैं Clausius statement पे. ठीक है? So इसको भी थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ काम करते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स के साथ डील करते हैं. ठीक है? तुम किसी सरकारी दफ्तर में गए, any government office you went, and you need a small piece of paper, like for example, like when you will sit for JEE or WBJE, you need some residential certificate or something like that. Okay, domicile certificate you need. You need to go to the government officials and you need to give some money to them. Okay, जिसको हम बोलते हैं bribe, बोलते हैं ना. तो हम थोड़ा पैसा खिलाने के बाद ही काम होता है. इन अदर वे राउंड में मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर वही चीज अगर नेता बोले कि मेरे को एक चीज चाहिए, बहुत बड़ा मिनिस्टर बोले, वो अपने आप आ जाता है. ठीक है? सिमिलरली इसको थोड़ा फिजिक्स से बात करते हैं. ठीक है? पानी को मुझे ऊपर से नीचे गिराना है, अपने आप आ जाएगा ना. लेकिन अगर नीचे से ऊपर लेके जाना है तो मुझे मोटर चाहिए होता है. नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. What is spontaneity? What is feasibility? Feasible process, spontaneous process are those process which happens on its own. ठीक है? Which happens on its own. नेता को सिक्योरिटी चाहिए, अपने आप पुलिस जाएगा सिक्योरिटी देने के लिए. एक कॉमन आदमी को सिक्योरिटी चाहिए तो नहीं मिलेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा तब मिलेगा. ऐसा ही कुछ क्लॉसियस स्टेटमेंट में बोलता है. अगर मुझे कोई भी चीज करना है जो अगेंस्ट नेचर, फॉर एग्जाम्पल heat flows from high temperature to low temperature. This is spontaneous, खुद से फ्लो होता है. अगर मुझे हीट को लो से हाई फ्लो करवाना है तो मुझे एक्सटर्नल सोर्स चाहिए. उसके बिना कोई ऐसा मशीन नहीं है जो नेचर के अगेंस्ट काम कर सके. क्लियर? जैसे पानी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए वो नेचर के अगेंस्ट हो गया, मुझे मोटर चाहिए होता है, एक मशीन चाहिए होता है. जनरली द वाटर विल गो फ्रॉम अप डाउन टू अप. But if I need to allow the water to go from up to down, we don't need any motor. This is called Clausius statement. If we want to allow the heat to flow from low temperature to high temperature, which is not the natural process. Natural process is the heat flows from high temperature to low temperature. If you want something to do against nature, we need some external source. Okay? So, जब भी मुझे कोई मशीन से कुछ काम करवाना है जो कि अगेंस्ट नेचर हो, तो मुझे उस मशीन के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी. लाइक रेफ्रिजरेटर, फॉर मोस्ट एग्जांपल इज रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर क्या करता है?
ठंडे चीज को और ठंडा करता है। थोड़ा बहुत बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। ये घर का बाहर, रेफ्रिजरेटर के बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब रेफ्रिजरेटर के अंदर मैंने दूध डाल दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। हाँ, तो रेफ्रिजरेटर का क्या, हीट यहां से लेके बाहर फेंक दिया, तो ठीक है, हाई से लो जा रहा है, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे करते करते दूध 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और बाहर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो अब हीट बाहर रहेगा कि अंदर आएगा। सो अकॉर्डिंग टू नेचर हीट अंदर आना चाहिए, लेकिन दूध तो और ठंडा होते रहता है ना, मतलब और हीट निकल रहा है ना दूध से। तो अब जो रेफ्रिजरेटर कर रहा है वो क्या कर रहा है, अगेंस्ट नेचर काम नहीं कर रहा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को फ्लो करवा रहा है, रेफ्रिजरेटर करवा रहा है ना बेटा। तो ये क्यों करवा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक मशीन लगा हुआ कंप्रेसर जो कि इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहा है। तो मुझे एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, देन ओनली वी कैन डू वर्क डन व्हिच इज अगेंस्ट नेचर। I hope you understand class. So this is the end of this video. Now we left with only one last topic, that is called as Carnot engine. Okay, thank you class.